But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Everybody living in that lonely house of the valley had one hope. They thought that God would surely help them. अब इन लोग की फसल सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा ये लोग सैड थे। और लेंचो कहता है कि इस साल अब हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो फिर उसके बाद से जितने लोग भी मतलब उस फैमिली मेम्बर जो भी लेंचो के होते हैं, तो सारे लोगों के मन में बस एक ही सिंगल होप रहती है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड ही इन लोगों को बचा सकते हैं, अब वही हेल्प कर सकते हैं। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. His wife told Lancho not to be so worried, although the crop was completely destroyed. She told him to remember that no one dies because of hunger. Lancho replied that people say that nobody dies because of hunger. सब ये कहते हैं लोग कि इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे, सारे लोगों को बस एक ही होप रहता है कि गॉड से हेल्प। तो लेंचो की जो वाइफ है वो कहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा वरी मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हालांकि हम लोग के जितने भी क्रॉप्स थी सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। और लेंचो कहता है हाँ, लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of the God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Throughout the night, Lencho thought about the help of the God. It was his only hope. He had been told that God can see everything. God can also see what is in the mind and heart of everyone. पूरी रात जो लेंचो था ना, वो बस एक ही हेल्प के बारे में सोच रहा था कि गॉड की हेल्प, कि गॉड डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि गॉड ही उसकी सिंगल होप थे। और मतलब उसने ये चीज़ सुनी थी कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है, अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या उसके लाइफ की सिचुएशंस है। ये सारी चीज़ें रात भर वो सोचता रहता है कि भगवान तो सब देख रहे हैं, तो वो मेरी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Lencho was very strong man. He used to work very hard in fields, but he knew how to write. Next Sunday morning, he started writing a letter. He thought that he would himself carry that letter to the town and send it by the post. लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, और उसको ना लिखना भी आता था। ये नहीं है कि वो फार्मर था तो इलिटरेट था या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। नेक्स्ट संडे क्या करता है, मॉर्निंग में वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है और सोचता है कि मैं खुद ही इस लेटर को कैरी करूँगा, मतलब लेके जाऊँगा और खुद ही पोस्ट करूँगा टाउन से। It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 paisas in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. It was the letter to God. In his letter, he requested God to help him and his family. Otherwise, we will remain hungry this year. I need 100 paisas to put new seeds in my field and to live until the new crops comes because the hailstorm. वो जो लेटर लिख रहा होता है वो यही रहता है कि अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को पत्र लिख रहा होता है और उसमें लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे।
मुझे 100 पैसास की ज़रूरत है ताकि मैं अपना जो नया बीज है उसको बो सकूं, और जब तक नई क्रॉप तैयार नहीं हो जाती है तब तक हम लोग का मतलब ये जीवन जीने के लिए तब तक के लिए वो पैसे चाहिए, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म था इसने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। तो पूरे साल का जो खर्चा है उसके लिए और नया बीज लगाने के लिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He put that letter into an envelope and sealed it. He wrote to God on the envelope. He was still worried but went to the town. He pasted a stamp on the envelope and dropped it into the letter box. क्या करता है वो जो लेंचो है, तो वो लेटर को क्या करता है, इन्वेलप में रखता है, लिफाफे में, और उसको सील कर देता है और उसके ऊपर लिख देता है टू गॉड, यानी कि ये लेटर गॉड के लिए है। और वो फिर भी मतलब अभी भी उसको क्या रहता है, उसको थोड़ा वरीड रहता है, तो टाउन जाता है और फिर उसके बाद से वहाँ पे स्टैम्प करता है और खुद ही लेटर जो बॉक्स रहता है उसमें उस लेटर को डालता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. You know, one of the employees at the post office was a postman. He used he used to also do other works of the post office. He went to his boss, the postmaster. He was laughing a lot. He showed the letter to his boss. In his career as a postman, he did not know the address written on that envelope. क्या होता है जब वो जो एक एम्प्लॉय रहता है पोस्ट ऑफिस का, तो वो पोस्टमैन रहता है और वो पोस्ट ऑफिस का और भी दूसरे काम करता है। तो क्या जब उसको ये लेटर मिलता है तो वो अपने बॉस के पास लेके जाता है और हंसता है कि इतना दिन जो मेरे लाइफ का अभी तक का कैरियर था एज अ पोस्टमैन, तो मैंने आज तक कोई ऐसा एड्रेस नहीं देखा कि कोई लेटर गॉड के लिए हो, यानी कि गॉड का एड्रेस मुझे नहीं पता। आज तक कभी कोई ऐसा लेटर नहीं आया कि जिस पे गॉड का एड्रेस लिखा हो कि गॉड को ये लेटर डिलीवर करना है। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." The postmaster was fat and a friendly person. He also started laughing, but immediately he became serious. He started tapping the letter on his desk. He wondered at the faith of the person who had written that letter. He wished he also had such faith. He was surprised that the man was sending a letter to God. पोस्टमास्टर जो था, जैसे ये जो पोस्टमैन था वो लेटर पोस्टमास्टर के पास लेके जाता है, वो भी हंसने लगता है क्योंकि वो जो पोस्टमास्टर है वो फैट है और फ्रेंडली नेचर का पर्सन है, तो वो भी हंसने लगता है। लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और लेटर को ऐसे डेस्क पे टैप करते हुए कहता है कि मतलब उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा फेथ गॉड में, कि मतलब लैंचो को विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। उसको बिल्कुल भी ऐसा कोई डाउट नहीं था कि हाँ गॉड के जगह पे कोई और मदद करे या फिर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ। उसको था कि मैंने गॉड से मांगा है तो गॉड मुझे डायरेक्टली वो पैसे देंगे। उसको बहुत ट्रस्ट रहता है गॉड पे। तो यही चीज़ जो पोस्ट मास्टर है ना, उसको बहुत वंडर हो जाता है, बहुत आश्चर्य वाली चीज़ लगती है। कहता है कि काश ऐसा फेथ मुझे भी रहता, और वो सरप्राइज हो जाता है कि ये पर्सन जिसने गॉड को ही लेटर लिखा है तो इसका गॉड में कितना ज़्यादा फेथ है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper.
In order to keep the faith of the person in God, the postmaster thought of an idea. He wanted to write a reply to the letter, but when he read the letter, it became clear to him he would need something in addition to paper, ink and kindness. जब पोस्ट मास्टर मतलब वो लेटर दिखता है उस पर टू गॉड लिखा रहता है, तो उसको मतलब वो ट्रस्ट उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि इसको इतना भरोसा है, तो सोचता है इस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। उसके माइंड में एक आइडिया आता है पोस्ट मास्टर के माइंड में कि क्यों ना मैं इसका रिप्लाई करूं ताकि इसका जो ट्रस्ट है गॉड पर वो बना रहे, वो भरोसा ना टूटे। फिर जब वो लेटर को ओपन करता है, लेटर पढ़ता है, तो फिर पता चलता है कि बस लेटर का जवाब देने के लिए बस पेपर, इंक और दया की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे उसका भरोसा बनाया जा सकता है, क्योंकि बस एक लेटर का रिप्लाई राइट करके नहीं करना था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he maintained his decision. He asked money from his colleagues. He also gave a portion of his salary. Many of his friends agreed to donate money to help the farmer. जब ये डिसाइड करता है रिप्लाई करने का, ओपन करता है, तो उसमें तो लेंचो लिखा रहता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। फिर ये देखता है तो सोचता है कि बस पेपर, इंक और दया की ज़रूरत नहीं है, इसका रिप्लाई करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है। फिर भी वो अपने डिसीजन पे टिका रहता है, वो जो पोस्ट मास्टर रहता है कि हाँ मैं हेल्प करूँगा उसकी। तो क्या करता है, अपने कलीग से भी हेल्प मांगता है और अपने सैलरी का कुछ पोर्शन भी खुद भी मतलब वो डोनेट करता है, खुद भी देता है। और बहुत सारे जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, तो फार्मर की हेल्प करने के लिए वो लोग भी एग्री हो जाते हैं।